اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر اسمبلی کا ناگپور اجلاس آج سے شروع ہونے والا ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے وزیر اعلیٰ کی ٹی پارٹی کا بائیکاٹ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناگپور میں وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، اور یہ بھی مانا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یعنی سی ایم کو لوک آیکت ایکٹ کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار شندے اور ٹھاکرے آمنے سامنے ہوں گے۔ ناگپور اسمبلی اجلاس میں شیوسینا سربراہ ادھو جی ٹھاکرے بھی شرکت کریں گے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کرناٹک میں ایک اور نیش ناٹک ہوا کہ ایک دوسرے مذہب کی لڑکی سے شادی کرنے پر ایک نوجوان کا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ کرناٹک میں بالکوٹ کے جامکھنڈی میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان کو دوسرے مذہب کی لڑکی سے محبت کر کے شادی کرنے کے پاداش میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لڑکی کا والد اس کیس کا کلیدی ملزم ہے جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ الزام ہے کہ کھتریہ برادری سے تعلق رکھنے والی بھاگیہ شری پاٹل کے والد نے نوجوان کو قتل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی کے والد اور 3 دیگر ملزمان نے نوجوان کو اس کے چہرے پر نمک پاؤڈر پھینک کر ہلاک کر دیا جب وہ ہفتے کی رات جامکھنڈی میں بھگوان کی پالکی کے تہوار کے بعد گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر جو ہے اس وقت چائنا کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، چائنا کو لے کر اب لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں۔ جے رام رمیش نے بھی کہا ہے کہ چین کے مسئلے پر وزیر اعظم خاموشی توڑے ہی، اور کہا کہ آخر عوام سے، ملک کی جنتا سے اور ملک سے کون سی بات چھپائی جا رہی ہے۔ وہیں پر کیجریوال نے بھی مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چین ہمارے علاقے پر قبضہ کر رہا ہے، ہم اس سے سامان خرید رہے ہیں، اور کہا کہ ہندوستانی صنعت کار، بڑے بڑے بزنس مین ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیجریوال نے مودی حکومت کو نشانے پر لیا ہے۔
आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि बैरिस्टर उमर फारूकी जो अभी बैरिस्टर बने हैं और लंदन में उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। अब जाहिर बात है कि औरंगाबाद के रहने वाले बैरिस्टर उमर फारूकी का औरंगाबाद में अब अजीमुशान इस्तकबाल होगा, उसकी तैयारियां शुरू है। अब्दुर्रहमान अंतोले के बाद फारूकी को मराठवाड़े का पहला बैरिस्टर बनने का शर्फ हासिल हुआ। एयरपोर्ट से शाहाना इस्तकबाल के बाद शहर भर में रैलियों और इस्तकबालिया जलसों का प्रोग्राम हुआ। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद की मारूफ सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियत कमाल फारूकी के होनहार सपूत उमर फारूकी ने लंदन में भी अपनी गैर मामूली ज़हानत का कमाल दिखाते हुए लिंगजन यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ यानी बैरिस्टर की बावकार डिग्री हासिल की है। इस शानदार इस्तकबाल की अब तैयारियां हो रही है और हक है इस्तकबाल होना भी चाहिए। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क की, भारत की जो एक स्कीम लाई गई है, एक्चुअल में अजीब व गरीब स्कीम मोदी हुकूमत ला रही है जो किसी को हजम नहीं हो रही है। तो अब मोदी जी ने यानी केंद्र सरकार ने एक अग्निवीर स्कीम लाई जिसके ताल्लुक से मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से कहा कि ये अग्निवीर स्कीम फौजियों के हौसले पस्त करने वाली स्कीम है। यानी खड़गे ने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर हुकूमत फौज को कम कर रही है और इसकी वजह से अगले 10 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं होगी। फौज में बतौर कांस्टेबल भर्ती न होना फौज के मोराल पर कारी ज़र्ब है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अग्निवीर को फौज के सिपाही को सलाम करना होगा। अगले 10 सालों के अंदर फौज में सिपाही के ओहदे पर बराह रास्त भर्ती कहीं नहीं होगी। बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। जी हां, कोलकाता से खबर आ रही है कि कोयला कंपनियों पर झारखंड का 1,36,000 रकम बाकी है। वजीर हेमंत सोरेन ने अमित शाह की मौजूदगी में इस बात का सवाल उठाया है। ऐसे ही बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि राजस्थान पर आयद 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के हुक्म पर रोक लगा दी। माशी बहरान से नबरद आजमा राजस्थान हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल बड़ी राहत दी जब उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के जरिए हुकूमत पर आए 3,000 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी। एनजीटी ने राजस्थान में गीले और खुश्क कचरे के मजमूई मैनेजमेंट पर नाकाम रहने से माहौलियात पर पड़ रहे बुरे असरात को देखते हुए यह जुर्माना आयद किया था। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में कई प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सफाई की अवामी तहरीक पर उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता कल यानी इतवार के रोज त्रिपुरा में 3,504 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ अहम इक़दामात का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी तवज्जो त्रिपुरा की हमाजहत तरक्की पर है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो, जी हाँ, बिलावल भुट्टो के सर पर 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। और किसने जनाब? बीजेपी के एक लीडर ने। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में काबिल एतराज़ रिमार्क्स के खिलाफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़बरदस्त मुजाहरे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के एक मकामी रहनुमा ने कहा कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी का सरकलम करने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के रहनुमा और जिला बागपत पंचायत के रुकन बंसल ने बागपत में कलेक्ट्रेट में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ये ऐलान किया है। बंसल ने कहा कि बीजेपी कारकुनान और लीडरान भुट्टो के पीएम मोदी के खिलाफ बयान पर राजी है और जो उनका सर ला कर देगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि झारखंड में शौहर ने, जी हाँ, शौहर ने बीवी के 50 टुकड़े कर दिए और बड़ी बेदर्दी से इलेक्ट्रिक कटर से उसे काटा। सर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि दूसरी शादी पर दोनों का झगड़ा हुआ करता था। जी हाँ,
और फिर इसने 25 साल दिलदार अंसारी ने बीवी को 50 से ज्यादा टुकड़ों में काट दिया। कत्ल के बाद उसकी लाश को इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े टुकड़े किया, कुछ टुकड़ों को घर में छुपाया, जबकि दीगर टुकड़ों को मोहल्ले के आसपास वीरान जगहों पर फेंक दिया गया था, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। लोगों ने कुत्तों को इंसानी गोश्त देखा तो पुलिस की इत्तला दी, जिसके बाद यह मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस को 18 टुकड़े मिले हैं। पुलिस सर समेत दीगर आज़ा की तलाश कर रही है। आइए नाज़रीन, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पूरे मुल्क में धड़कन की तरह देखी जा रही है और पूरे मुल्क का दिल धड़क रहा है। इस यात्रा को लेकर मोहब्बतों से मचल रहा है और लोग राहुल गांधी के जगह जगह जोरदार सत्कार सम्मान इस्तकबाल कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, इस पर भी बीजेपी हैरान है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और उन्होंने राहुल गांधी से जो गुफ्तगू की है, इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि अब जो हुकूमत ने घटिया पॉलिसियां बनाई है, ये तमाम पॉलिसियां किसानों और छोटे ताजिरों को नुकसान देने वाली पॉलिसियां है जो इन्होंने बनाई है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।